Hi guys, in today's lesson, I'm explaining all the questions of October-November 22 variant 12. So guys, अभी के लिए since we have बहुत limited time और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर पेपर की क्वेरीज के लिए क्या करें, so I'm not recording while solving, but मैं सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि I don't have that much time कि मैं साथ सॉल्व करते करते रिकॉर्ड करूँ. So that's why it's solved, but I'm explaining each and everything I did in this paper. So for the first part, I'm supposed to make the equation of the perpendicular bisector of A. So an equation of perpendicular bisector, you find out the midpoint. दो पॉइंट दिए हुए होते हैं, आप बच्चे उसका मिड पॉइंट ढूंढते हो और आप ग्रेडियंट ढूंढते हो और फिर परपेंडिकुलर के लिए आप ग्रेडियंट को मेरा बच्चा नेगेटिव रेसिप्रोकेट करते हो. That's what I did. And by using the negative reciprocate of the gradient and the midpoint, you form an equation by either y is equal to mx plus c or y minus y1 is equal to mx minus x1. Got this? Then it says find the equation of circle with center O and passes through B. So equation of circle होती क्या है? It's x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square. H and K तो सेंटर होता है, तो आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख दी. अब मुझे रेडियस नहीं पता. आई नो द सेंटर एंड आई नो सर्कल पास हो रहा है बी से, तो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस ढूंढ लूंगा दैट विल बी माई रेडियस. तो जो रेडियस आएगा आप उसको इधर प्लग इन कर दोगे एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. देन क्वेश्चन 2 में आपको बोला हुआ है the first, second, and third term of AP was this, where A is positive constant और हमें first 50 term का समझ. तो बच्चे AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब 2A minus A का जो आंसर होगा that will be equivalent to what? A square minus 2A. So I equated both of them and I got the value of A3. जब मुझे पहला टर्म मिल गया 2 times 3 is 6 and 3 squared is 9, तो मुझे कॉमन डिफरेंस भी इजीली मिल गया बच्चे 3. सो आई नो द फर्स्ट टर्म, आई नो द कॉमन डिफरेंस. मैंने एपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई करा, दैट्स व्हाट n upon 2a plus n minus 1d. डू यू गेट दिस? ये बात समझ आने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3. बोला हुआ नो रियल रूट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर नो रियल रूट होता है तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. Do watch my quadratic lessons uploaded on YouTube. Guys, उसमें हर एक पॉसिबिलिटी मैंने करवाई है. स्पेशली लेसन 3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें मेजॉरिटी बच्चों को लगा था क्वेश्चन ही गलत है. उसमें शो लिखा हुआ है बच्चे, दैट मैटर्स अ लॉट. छोटे छोटे पॉइंट मैटर्स अ लॉट. देन in the next part it says we need to solve this quadratic equation. So मेरा बच्चा, I'll solve directly this by middle term breaking. मेरे cos के दो आंसर है बच्चे. Cos theta equal to 1 है. That means first and fourth quadrant. But the thing is my range is still 180, which means खाली हमें first quadrant का आंसर चाहिए. Here cos was positive. That means first and fourth quadrant again. But my range is still 0 till 180, so I'll find out the answer of the first quadrant. That was 75.5 here and 0 here. Then, geometric progression has the third term 1764. Geometric progression में term का formula होता है ARN minus 1. तो third term में N3 हो गया बच्चे and you equate it to 1764. And the sum of second term and third term is this. Second term का sum क्या होगा? AR2 minus 1 and third term का sum क्या होगा? AR3 minus 1 is equal to क्या होगा? 3444. हाँ या ना? You took A common and you equated both of them. इससे मुझे R मिल गया.
Once you got the value of r, अब मुझे 50th term चाहिए. I'll again apply the term formula AR 50 minus 1. I know what's A, I know what's R, and I found out the answer. R जब आ गया, आपने इसको इस equation में plug in कर दो बच्चे, and you'll get A easily. So, okay जी. अब बच्चे मुझे इसको stretch factor दिया हुआ exactly का 0.5. So guys, what are the coordinates given to us? 0, 1. ये पॉइंट आपको क्या दिया 1, 2 एंड देन ये पॉइंट क्या दिया 2, 1. देन आपको क्या दिया हुआ बच्चे 3, 3 and it was 1, 3 my bad. And then this point is what बच्चे last one 4, 1. अब 0 डिवाइड बाय स्ट्रेच फैक्टर हमेशा क्या होता है 1 अपॉन स्ट्रेच फैक्टर. ओके तो 1 अपॉन 0.5 बच्चे क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा and y stays the same तो 0, 1. Then this one 1 divided by 1 over 0.5, that's what बच्चे 2, 1 upon 2. So it's going to become 1 upon 2 comma 3. It's going to come here. Then 3 will stay the same. 2 divided by 1 divided by 0.5 comma 1. So 2 divided by 2 is what? It's 1. So 1 comma 1 will lie here. इसी तरह this one 3 1 divided by 0.5 will become बच्चे आपका 1.5. So it's 1.5x and y is what बच्चे आपका 3. So it's going to lie here. And the last one 4 1 divided by 0.5 over 1. So that's going to become what बच्चे आपका 1 divided by 0.5 is 2. 4 upon 2 क्या होता है? That's 2 and 2 comma. So my new shape will look somewhat like this. इसके बाद बच्चे इसके अंदर ट्रांसलेशन हो रही है 1 यूनिट की. That means the entire shape will move एक ऊपर. So this blue one is now the graph of gx. Got this? And then बच्चे this is the question. नेक्स्ट सवाल में कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में करना है, एक्सपैंड करके कंपेयर कर दो. देन बच्चे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में करा इक्वल टू 45 करा एंड देन सॉल्व करके दो आंसर आ जाएंगे. देन नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोला है बच्चे, इसको स्केच करना है. तो आई नो द टर्निंग पॉइंट इज दिस एंड दिस 4x स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई मेड अ मिनिमम कर्व. नेक्स्ट पार्ट में बच्चे इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है. पहले आपने एलसीएम ढूंढा बच्चे एंड देन दिस एंड दिस कैंसिल आउट. अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा. आप इस पॉइंट पे फंस गए, आप कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्या करो. तो उस पे बच्चे आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ. आप जो प्रूव करना है ना बच्चे, उसको आप इधर लिख दो, साइड पे पेंसिल से करना है. ये एक छोटी सी ट्रिक है whenever you get stuck in identities. देन बच्चे आप इसको सॉल्व करो. ये पहला स्टेप आ गया, ये आपका दूसरा स्टेप आ गया, ये तीसरा स्टेप आ गया. जो तीसरा स्टेप है ये और ये सेम है, मतलब आपने दोनों साइड को एक मीटिंग पॉइंट में मिला दिया. फिर जब सेम आ जाए ना, ये वाली चीज आप इधर कॉपी करो, ये वाली चीज आप इधर कॉपी करो, और इस तरह से एग्जामिनर विल नेवर एवर फाइंड आउट कि आपने उसको धोखा दिया है, आपने उसको एक ट्रिक से करके दिया है. Do you get till this point बच्चों? So आप यहाँ पे लिखोगे, ये वाला आपने कॉपी कर दिया था. देन आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. ये वाला स्टेप मैं कॉपी कर रहा हूँ. एंड साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। गाइस ये एक आइडेंटिटी का सवाल है, पहले आपने यहाँ तक करा, अब आपका ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या है बच्चे आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट्स व्हाट बच्चे आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप टोटली ब्लैंक हो गए हो कि मैं क्या करूं। सो व्हेनेवर यू सी सच केस ना, आप साइड पे पेंसिल उठाओगे और आप दूसरी साइड को इधर लिख दोगे पहले। अब मुझे बताओ बच्चे tan स्क्वायर थीटा होता क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैन यू फाइंड एलसीएम बच्चों? ये आपका हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो मेरा बच्चा इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos square theta upon cos square theta. I can cancel this out. तो ये हो जाएगा 1 upon sin square theta minus cos square theta. अब आप सेम पॉइंट पे पहुंच गए, हाँ या ना? Now what should be your next step? आप ये चीज को as it is कॉपी कर दो। आप एग्जामिनर को ये कॉपी करके दिखा दो। देन मेरा बच्चा आप इसको ब्रेक करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने ये भी कॉपी कर दिया बच्चे सेकंड से। नाउ दिस वन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बैकवर्ड कॉपी कर दो, प्रूव हो गया, और फिर आप इसको मिटा दो। दिस हाउ एग्जामिनर विल नेवर फाइंड आउट कि आपने उसको ट्रिक करा एंड इजीली आंसर अपना ढूंढ लिया। जब भी आइडेंटिटी में फंसो, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। दोनों साइड सॉल्व करो, जहां पे मीटिंग पॉइंट आ गया उससे बैकवर्ड कॉपी कर दो, और जो बैकवर्ड वाली साइड है एंड में उसको इरेज करना मत भूलना। देन मुझे इसको सॉल्व करना है। सो बच्चे दिस थिंग वाज इक्वल टू दिस इन द लास्ट वन। मैंने इसको रिप्लेस करा, इक्वल टू 2 करा एंड देन ट्रिक की एंगल्स वाली अब से सॉल्व कर लिया बच्चे। Got this guys? But इसमें your calculator should be in radian mode. By the way, trick के lessons इंशाल्लाह आज रात तक upload हो जाएंगे। Then बच्चे बोला the equation of the curve is this. The curve passes through this one. Find the equation of the curve is such that dy over dx पता है। जब मुझे gradient पता है, equation of the curve चाहिए होता है, आप हमेशा क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो प्लस सी लिखते हो। x and y की वैल्यू दी हुई है जो आप प्लग इन करते हो, एंड यू गेट बाय दिस यू गेट c। Then it says find out the x coordinate of stationary point. Stationary point के dy over dx equate किससे होता है, 0 से। So equate this to 0, you get the x value. That's one. नेक्स्ट सवाल में बोला है जी एफ एक्स चाहिए, मतलब g के अंदर आपने f डालना है। Then it says gf2 is equal to 11. g के अंदर f डालो, उसके x में 2 डालो, equate to 11, and that's how you got a। फिर बच्चे बोला fx has a minimum point where x equal to 1. Explain whether f has an inverse or not. f का inverse is not possible बच्चे, because ये कौन सा फंक्शन होता है बच्चे आपका, it's not one to one function. That's why बच्चे इसका inverse is not possible to get this. इसके बाद बच्चे बोले g इनवर्स एफ एक्स का आंसर चाहिए। पहले इनवर्स आपने ढूंढा, उसके अंदर उसके x में आपने f डाल दिया, you got this as your answer. Explain why the composite function fg cannot be formed. गाइज इसके ऊपर मैंने एक पूरा नोट लिखा हुआ है, जो मैं अपने फंक्शंस की जब लेसन अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन एंड रेंज का समझाया हुआ है, ठीक है।
तो इसका सवाल का आंसर होगा द रेंज ऑफ जी डज नॉट लाई इन द डोमेन ऑफ एफ। हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, उसका जो नोट मैंने लिखवाया है। इसके बाद बच्चे मुझे बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आर ए एस बी। सो एक बच्चे आर ए एस बी का पेरीमीटर चाहिए, एक ये सेक्टर है, आपने 2 पाई में से 2 पाई अपॉन 3 माइनस करा, you got this angle as what 4 pi upon 3 and you get, in order to get the arc length हमने क्या अप्लाई करा r थीटा। इसी तरह एक ये सेक्टर है जिसका एंगल पता है, रेडियस पता है, so r थीटा से हमें ये वाला आर्क लेंथ भी मिल गया and when you added both you got the perimeter of RASB। then it says difference in area of two triangle चाहिए। आपने एक नॉन राइट एंगल का एरिया कैसे ढूंढा, हाफ ए बी साइन सी से, एंड देन आपने दूसरे नॉन राइट एंगल का एरिया ढूंढा हाफ ए बी साइन सी से, एंड जब आपने दोनों को माइनस करा बच्चे आपके पास डिफरेंस आ गया। इसके बाद मुझे बोला एरिया ऑफ आर ए एस बी चाहिए। अब सुनना गाइस, क्या आप इस पूरे सेक्टर का एरिया ढूंढ सकते हो, हाँ या ना, इजीली। इसके बाद मेरा बच्चा आप दूसरे सेक्टर का भी एरिया ढूंढ सकते हो, ये वाले का, यस सर, इजीली। और आपने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस ऑफ टू ट्राइंगल ढूंढा है, यस सर। इफ यू ऐड ऑल दीज थ्री सो विल यू गेट द एरिया ऑफ अ एंटायर थिंग, जी सर। Then the last question, it says find out the coordinate of a minimum point। मिनिमम पॉइंट में डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेट टू जीरो करते, उससे x आ गया। अब y के लिए आप ओरिजिनल इक्वेशन में x डालोगे तो y आ जाएगा। फिर मुझे बोला है एरिया अंडर द कर्व चाहिए। गाइस एरिया के 5 केस आते हैं, ये वाला कौन सा केस है, अपर माइनस लोअर वाला। लिमिट्स भी आपको इसमें दी हुई है 0 एंड 4, तो आपने अपर माइनस लोअर करा, 4 एंड 0 की लिमिट लगाई एंड यू गॉट द एरिया अंडर द कर्व, यू गेट दिस। वन लास्ट पार्ट, रेट ऑफ चेंज का सवाल। रेट ऑफ चेंज में मुझे रेट किसका बताया हुआ बच्चे, एक्स का, मतलब dx ओवर dt बताया। ढूंढना क्या है, dy ओवर dt। लास्ट पेपर में भी मैंने बताया था पहले डेटा बनाओ, जो ढूंढना हो वो लेफ्ट पे लिख दो। ऊपर क्या लिखा हुआ है, dy, तो इधर dy लिख दो। नीचे क्या लिखा है, dt, इधर dt लिख दो। डेटा को देखो सर, dy यूज हो गया, dt यूज हो गया, dt यूज हो गया, व्हाट्स लेफ्ट, dx। इधर dx लिखो, इधर dx। Now what was the value of dx over dt? That was 2. We don't know dy over dx. You differentiate this and put the x value as 4. That's what I did. So I got my answer as minus 15 upon 2. That's dy over dx. If you multiply, you get what? Minus 15. That's it, guys. Here we complete October, November 11. October, November variant 12, 2022. गाइस अभी के लिए क्योंकि एग्जाम में कम टाइम है, I can't solve all the papers and record properly, but I assure you that these explanations will clear most of your queries। अगर कोई टॉपिक में आपको conceptually मसला है, I'm going to upload all the topic on YouTube one by one, slowly and gradually। Till then, take care guys, bye।